Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the best of CAT LRA practice series. Right, so चलो start करते हैं. And if you're looking for a CAT 24 बैच, चाणक्य बैच है, ठीक है, काफ़ी टाइम मैं बता चुका हूँ. सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है and if you want to call us, the numbers are on the slide, right? Now let's start solving this. This is again a Venn diagram problem. थोड़ा relatively easy होने वाला है because we have already solved these kind of sets before. But yes, because we are covering all the sets cat has thrown, right? So let's do this also. ठीक है, this is a standard 4 set Venn diagram. चलो start करते हैं. Before seeing the solution, I would again encourage you to pause this video, try the set yourself, and then proceed on with the rest of the solution. ठीक है, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस एंड लेट्स स्टार्ट फ्रेमिंग ऑल द डेटा, राइट. सो क्या दिया हुआ है, 1000 पेशेंट्स करेंटली सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज वर सेलेक्टेड टू स्टडी the effectiveness of treatment of 4 types of medicines, that is A, B, C and D, right? So that simply like means we are actually going for a 4 set Venn diagram because chart data set hai. These patients were first randomly assigned into 2 groups of equal size called treatment groups and control groups. So that is the first important piece of information. These 1000 patients, right, were randomly assigned into 2 groups of equal size, right? So 500 and 500. दो groups हमने divide कर लिए. The first group is called a treatment group and the second is called a control group. The patients in the control group were not treated with any of these medicines. Instead, they were given a dummy medicine called placebo containing only sugar and starch, right? तो 500 पेशेंट्स को तो लाइक इनको बस हमने प्लेसिबो दे दिया है, राइट. सो ये हमारे लिए इतना इरेलीवेंट नहीं है इसमें. ऑल द इन्फॉर्मेशन विल बी विद रिस्पेक्ट टू दीज रिमेनिंग 500 जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रीटमेंट ग्रुप बोलने वाले हैं. Now, the following information is known about the patients in the treatment group. Now, let's start reading all these statements. Total of 250 patients were treated with type A medicines and total of 210 patients were treated with type C medicines. So, as soon as I read all these statements with a cursory glance, I realize that we are actually going for a 4 set Venn diagram. So, सबसे पहले काम करते हैं, एक 4 set Venn diagram create कर लेते हैं for us. So, let's make that square. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी आर स्ट्रक्चर. नाउ स्टार्ट करते हैं इसमें एक एक करके इन्फॉर्मेशन रीड करना एंड प्लग इन करना. सो लेट्स कॉल दिस ए, बी, सी एंड डी, राइट. नाउ अ टोटल ऑफ 250 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए मेडिसिन. सो ए का टोटल कितना हो गया, 250. एंड टोटल ऑफ 210 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप सी मेडिसिन. सो सी का कितना हो गया, टोटल 210, राइट. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. Second, B point, 25 patients were treated with type A medicine only. So A only is this 25, fair enough. 20 patients were treated with type C medicine only. So C only would be 20. This is also good. 10 patients were treated with type D medicine only. So D only हमारा भी दिया हुआ है, that is 10. So obviously B only is bracing, right? So that is the second point. C, 35 patients were treated with type A and D medicines only, right? So A and D only. अभी A and D only कौन सा होता है, ये रीजन होता है. So ये कितना हो जाएगा, 35. So this is 35. 20 patients were treated with type A and B medicines only. So A and B only is this. So this has to be what, 20. Next, 30 patients were treated with type A and C only. So A and C, right? A and C only would be this. And ये कितना हो जाएगा, 30. So that is also good. तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर सेट में, ठीक है. सो 30 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप A and C only. And finally 20 patients were treated with type C and D only. So C and D only would be this. So इसमें कितना नंबर आ जाएगा तुम्हारा, 20, right? So that takes care of the C point. Now, D point. 100 patients were treated with exactly 3 types of medicine. Now, exactly 3 कहाँ पे होता है, ये काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं. Exactly 3 is this 1, 2, 3 and 4 regions, right? So, इन सब का टोटल कितना है आपका, 100, right? 100 patients were treated with exactly 3 types of medicine. This plus this plus this plus this is 100. So, अभी वेरिएबल लेने से पहले थोड़े और इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं. दैट इज सिंपल टू रिमेंबर, राइट? कि ये सब चारों ऐड करके कितना आ जाएगा, 100. ठीक है, चलो दैट इज द डी पॉइंट. तो आई विल जस्ट राइट एग्जैक्टली 3 and that was actually equal to 100. So I'll remember that. ठीक.
ई पॉइंट 40 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन ऑफ टाइप ए बी सी बट नॉट डी. सो वही एग्जैक्टली 3 में कुछ पिन पॉइंट कर रहे हैं, उनके स्पेसिफिक वैल्यूज देना स्टार्ट कर दिया हमने. ठीक है. सो ए बी सी बट नॉट डी. सो ए बी सी बट नॉट डी वुड बी दिस वैल्यू इटसेल्फ. सो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 40. देन 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद ए सी डी बट नॉट बी. सो ए सी डी. सो सी डी में कॉमन ये हो जाएगा और ए के साथ कॉमन ये वाला रीजन हो जाएगा. राइट. सो ए सी डी बट नॉट बी. सो दिस वुड बी 20. सो इफ यू नोटिस इस 100 में से जो कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस था, इस 100 में से ये दो वैल्यूज ऑलरेडी पता है अपने को, दैट इज 60. सो मतलब ये दोनों रिमेनिंग वैल्यूज अपनी कितनी बची है 50 है. ठीक है. सो दैट इज आर ई पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट दैट वी हैव इज 50 पेशेंट्स वर गिवन ऑल द 4 टाइप्स ऑफ मेडिसिन. ऑल 4 कहाँ पे आता है, एकदम सेंट्रल में आता है. राइट. सो लेट्स राइट दैट डाउन. ऑल 4 इज दिस 50. And 75 patients were treated with exactly one type of medicine. Now that is also unique because exactly A, exactly B, exactly C और exactly D का टोटल तुम्हारा कितना है 75 है. इसमें से तुम्हें ऑलरेडी क्या क्या पता है 25 और 20 प्लस एंड 30 एंड 25 वुड बी 55. 75 exactly वन का टोटल बनना चाहिए, तो 75 एंड 30 55. So 75 55 this would be 20. राइट. ठीक है. सो ये हमारा हो गया कंप्लीट. सो ये हो गया 20. एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस, देखो अभी दिस प्लस दिस हमारा रिमेनिंग है, तो उसका टोटल तुम्हारे पास 100 ही है. सो किसी तरीके से अगर दोनों में से कोई एक मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा दूसरा भी मिल जाएगा. और वो मिलेगा कैसे, बिकॉज ऑफ दिस 250. सो 250 हमारा इस पूरा ए वाले टाइप के मेडिसिन का टोटल होना चाहिए, जिसमें से एक ही नंबर रिमेनिंग है. सो टोटल ऐड करके 250 में से बस क्या करना है, सिंपली सबट्रैक्ट करना है. राइट. सो दिस अ वेरी इजी सेट, बट येस दीज काइंड ऑफ सेट्स कम लेंदी देखने में कितना ज़्यादा है, बट येस डेफिनेटली अ डोएबल वन एंड लाइक विद इन 10 मिनट्स से आपका सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. सो 25 एंड 35 वुड बी 60 फिर 60 20 80 और 70. 80 70 is 150 and 150 and 50 150 and 50 200 220 हो गया. तो इसका मतलब 250 माइनस 220, ये रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 30 आ गई. नाउ हमने क्या बोला था 40 20 60 60 30 90 था. 90 तुम्हारा ये 3 ऐड अप करके बन चुका है. 100 हमारा ये 4 ऐड करके बनना था. सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 10. Now how would I like get the remaining two values? Again notice करो तो ये 210 तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ था. So 210 is all these 8 values combined, उससे तुम्हारा ये वैल्यू निकल आएगा. राइट. एंड ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, हमें पता है कि टोटल 500 है. राइट 500 है. सो 500 हमारा टोटल बनने वाला है. राइट. चलो सबसे पहले तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी तुम्हारी 20 40 30 दैट इज 90 10 is 100 170 and 20 190 हो गया. तो 210 minus 190 210 minus 190 this would be 20. राइट. सो वी कैन ऑल्सो फिगर आउट दिस, बट एक बार हम ज़रा सा क्वेश्चन देख लेते हैं whether एक्चुअली नीड दैट वैल्यू और नॉट. राइट. सो लेट्स डायरेक्टली गो टू द प्रॉब्लम्स नाउ. राइट. अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट सेट. चलो द फर्स्ट प्रॉब्लम, हाउ मेनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन ऑफ टाइप बी. अच्छा इसी में अब आपको बी का वैल्यू एक्चुअली में चाहिए था. नाउ द फर्स्ट थिंग आई वांट टू लाइक नोटिस इन दिस इज, ये जो 500 आपके टोटल थे उनमें एटलीस्ट वन वाला था कि नहीं था. सो क्या वो हम लाइक बोल सकते थे, लेट्स रीड दैट अगेन. द पेशेंट्स इन द कंट्रोल ग्रुप वर नॉट ट्रीटेड विद एनी ऑफ दीज मेडिसिन इंस्टेड. ठीक है ये वाला पार्ट. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट इन द ट्रीटमेंट ग्रुप. तो ट्रीटमेंट ग्रुप में हमने स्पेसिफिकली बोला था. राइट. ठीक है. इसने कहीं स्पेसिफाई तो करा नहीं है एंड ऑल्सो इट इज़ अ टीटा प्रॉब्लम. तो ऑब्वियसली विल अज्यूम राइट कि ये पूरे के पूरे 500 पेशेंट आउटसाइड नहीं है एंड मीनिंग वाइज भी वही क्लियर होना भी चाहिए. तो 500 तुम्हारा एक्चुअली में टोटल हो जाएगा. अब 500 पूरा नंबर बैठ के ऐड नहीं करते हैं. 500 में से ये 250 तो हमारा ऑलरेडी है. सो 250 के बाहर क्या है तुम्हारा 20 20 10 50 हो गया और प्लस 20 20 10 दैट इज अगेन 50. सो ये हमारा कितना हो गया 350. सो फ्रॉम दिस 500 राइट, फ्रॉम दिस 500 वी ऑलरेडी हैव अ 250 प्लस 100 दैट इज 350. सो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 150. राइट. सो दिस वैल्यू वुड बी 150. आई अगेन जस्ट चेक. सो 210 ये हमारा हो गया था. 210 के बाहर 25 20 70
40, 65, 65, 65, 35, 100, 140, 140, right, 140, this is 350, ठीक है. So 350, तो घूम फिर के ये अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी 150, ठीक है. राइट, सो हाउ मेनी पेशेंट वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप बी. तो बी का बस आपको क्या करना है, टोटल करना है. कर लेते हैं. 150, 30, 180, 180 एंड 60, 180 एंड 60, 180 एंड 60, 240, 240 एंड 60, 240 एंड 60, 300, 340. So the answer to the first problem is 340. Let's just remove this. Right, so 340 is the answer to the first problem. Second, the number of patients who were treated with medicine of type B, C and D but not A. Right, B, C, D but not A would be this 10. So second का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 10. Third, how many patients were treated with medicine of types B and D only. राइट, तो उससे B and D में आपको कॉमन देखना है, तो वही सबसे लास्ट नंबर जो एक्चुअली में निकला था, दैट इज 150. And the fourth and the final problem, the number of patients who are treated with medicine of type D. So D का टोटल करना है, so कर लेते हैं. So 150, 10, 160, 160 and 30, 160 and 30, 190, 190 and 35, 190 and 35, that is 225, ये हो गया. Then 50, 20, 70, 70 और 30, 70 और 30, 100 ही हो गया. कितना हो गया तुम्हारा 325, and that is the number of patients who are treated with medicine of type D. Right, so the answer to the final problem is 325. Right, so that was a very simple set. I hope every one of you got this one correct. Right, so once in a while you will also take simple problems, right, because you have to have that confidence. हाँ, CAT में आपका easy sets भी आते हैं, ठीक है. चलो, if you have any doubts you can just put that in the comments. Thank you.